continuous learning. I'm back with one more video lecture on sampling. Last time we have discussed about the non-probability sampling. Today we will discuss about the probability sampling. Before starting upon the probability sampling, I will tell you that I'm sorry that we have not uploaded this probability sampling lecture on time. It's because of some personal issues, we can say. So before starting the today's lecture, if you have not joined our Telegram channel, please join the Telegram channel through this link. Here is the link available. If you have not followed us on Insta, for the information you can follow by this ID. Okay, so no, we have discussed about the non-probability sampling, and first we have discussed about the sampling, then about the these types of sampling techniques in the non-probability sampling technique, and we saw another technique is the probability sampling technique. In non-probability sampling technique, we have seen that in this technique we use this technique where we have not the frame available, where there is not the population is not listed. We can't list the population, or the list of the population is not available. So there are non-probability sampling techniques are like purposive sampling, judgmental sampling, convenient sampling, quota sampling, or snowball sampling. If you have not gone through the previous video lecture, the link of that video lecture is in the description box of this video lecture. So today we will discuss about the probability sampling technique. As probability sampling technique is that technique when we can say that the population frame what we say is available, और the population जो है that is list of population is being is available. We can list all the members of the population. I have previously said about the definition of the probability sampling. So probability sampling के जो types हैं वो like we have random sampling, we have systematic sampling, we have stratified sampling, we have stratified proportionate sampling, we have cluster sampling, and we have multi-stage sampling. We will today discuss them one by one. So whenever we have the population that's widely spread population, and the population members of the population are enlisted, so we can follow the probability sampling technique. And in probability sampling technique each and every member जो population का होगा उनको हम कहते हैं they have the chance to be drawn as a sample. ठीक है, so इसीलिए हम मतलब probability sampling का ये देख रहे हैं. so, जब भी हमारी जो रिसर्च जो होगी, जब जो उसमें पॉपुलेशन होगी, चाहे वो होमोजीनियस हो या हम ये कहेंगे कि मतलब वाइडली स्प्रेड हो, तब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं. तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करते हैं, या दूसरे तरीके से जब हमारी पॉपुलेशन जो होगी जो हेटेरोजीनियस होगी, तो तब हम जाते हैं लाइक स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, या हम ये स्ट्रैटिफाइड प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग पे जाते हैं, जो अप्रोप्रिएट टेक्निक्स हमें यूज़ होंगी टू ड्रॉ द सैम्पल फ्रॉम दैट वेरी पॉपुलेशन. तो इसी तरीके से क्लस्टर और मल्टी स्टेज. लेट्स डिस्कस वन बाय वन देम. सो पहली जो टेक्निक है दैट्स द रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक. रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक जो है ये हम तब यूज़ करते हैं, इट्स मतलब ये तब एक रिसर्चर रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ कर सकता है जो पॉपुलेशन होगी दैट विल बी होमोजीनियस, राइट.
जो मतलब जिस पॉपुलेशन पे हम काम करेंगे वो होमोजीनियस होनी चाहिए, और वो ज़्यादा वाइडली स्प्रेड नहीं होनी चाहिए, एंड नॉट वाइडली स्प्रेड, ठीक है। तो वो वाइडली स्प्रेड भी नहीं होनी चाहिए और वो होमोजीनियस होनी चाहिए, तभी हम लगा सकते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, राइट। सो अगर हम इसमें से एक मतलब एग्जांपल लेंगे, प्रीवियसली जो हम लोगों ने टाइटल बनाया था, तो उसी टाइटल की एग्जांपल लेके चलते हैं। लाइक वी हैव अ टाइटल, अ स्टडी ऑफ द परफॉर्मेंस इन online and offline teaching of the IBM students of Central University of Kashmir, Jammu and Kashmir, right. So अगर हमें इस टाइटल को में देखना है कि जो IBM स्टूडेंट्स है, या ये जो टाइटल है आप लोगों को पता है, जो भी IBM स्टूडेंट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं उनका लिस्ट हमारे पास बाज़ाब्ता है, ठीक है। सो ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग एनलिस्टेड, ठीक। तो हमारे पास हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ़ IBM स्टूडेंट्स कितने हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है, उनके एनरोलमेंट से हमें पता है। सो जो भी पॉपुलेशन हमें है दैट्स होमोजीनियस, और वो वाइडली स्प्रेड नहीं है। आप IBM स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं तो IBM स्टूडेंट्स ही हमें हैं, एंड वो मीन्स वो होमोजीनियस है और वो ज़्यादा स्प्रेड आउट भी नहीं है। क्लास इसी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे दैट्स द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। तो ये अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक है। बट अब मसला कि जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है, इसमें से आपको बहुत सारे डिफरेंट वेज मिलेंगे टू सिलेक्ट द सैम्पल थ्रू दिस टेक्निक। लाइक वी हैव एक टेक्निक है जिसको हम चिट मेथड बोलते हैं इसके अंडर। दूसरी टेक्निक है जिसको हम रैंडम नंबर के ज़रिए हम सैम्पल ड्रा कर सकते हैं। तीसरा जो है दैट्स द कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नंबर्स, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं, या आप चिट मेथड कहो, लॉटरी मेथड कहो, या इसको हम फिश बाउल मेथड भी कह सकते हैं, ठीक। सो हम एक एक करके इस पर डिस्कस करेंगे। जो चिट मेथड है या जो लॉटरी मेथड है, हम इसमें क्या करते हैं, ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें साइज़ पॉपुलेशन विल नॉट बी टू लार्ज, मतलब ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होगा पॉपुलेशन का, ठीक। क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा पॉपुलेशन का तो मसला हो सकता है कि हम उतने सारे चिट्स नहीं बना सकते हैं पॉपुलेशन के। तो इसीलिए हम कहते हैं इट शुड बी, मतलब हमें लिमिटेड साइज़ होना चाहिए पॉपुलेशन का। लेट्स सपोज़ कि हमारे पास साइज़ ऑफ पॉपुलेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल IBM स्टूडेंट्स जो हैं वो 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इन 100 स्टूडेंट्स को हम लिस्ट बना सकते हैं, चिट बना सकते हैं। इन 100 मतलब 100 चिट्स हम बना सकते हैं। तो इन 100 में से हमें फिर 30 ड्रा आउट करने हैं बाय दिस चिट मेथड। तो हम 1 बाय 1 चिट बनाएंगे और उनको एक बाउल में डालेंगे। दैन उस बाउल में से हम मतलब रैंडमली कोई भी चिट निकालेंगे, तो फिर उसका नंबर या सीरियल नंबर जो होगा वो पेन डाउन करेंगे। लेट अस सपोज कि पहला वाला चिट जो हमने उठाया दैट वाज लाइक 13, ठीक है। तो पहला वाला चिट जो है यानी कि हमारा सैम्पल जो है वो उसमें पहला मेंबर जो होगा वो 13 होगा। जब दूसरी बार हमने रैंडमली निकाला, लेट अस सपोज कि तब वो 42 आया, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा सैम्पल मेंबर होगा दैट्स 42। इसी तरीके से तब तक हमें ये करने हैं जब तक हमें 30 सैम्पल काउंट ना आए, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरा मेथड है दैट इज़ द दिस रैंडम नंबर टेबल। तो हमारे पास एक रैंडम नंबर टेबल अवेलेबल है। हम इसी को मान के चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो 100 ये स्टूडेंट्स हैं। तो हमें सैम्पल जो ड्रा करना है, हमें सैम्पल ड्रा करना है 30 स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो ये 100 स्टूडेंट्स जो हैं ये 3 डिजिट नंबर है, ठीक। तो हमें इसका ख्याल रखना है कि हमें एक 3 डिजिट नंबर है, बाकी हमें 2 डिजिट नंबर ही आएंगे। तो हमें जब भी हम रो या कॉलम सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें स्टार्ट करना है, तो हमें ध्यान रखना है कि 2 डिजिट करना है, 3 डिजिट करना है या 4 डिजिट करना है। लेट अस सपोज कि मैं रो नंबर सेकंड से कॉलम नंबर सेकंड से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो कॉलम नंबर सेकंड यहाँ पे है
कॉलम नंबर सेकंड और थर्ड को मैं लेके चलती हूँ। अगर मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी तो पहला नंबर जो आएगा दैट विल बी 34, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा नंबर जो आएगा दैट विल बी 73, तीसरा नंबर जो आएगा दैट विल बी 57, एक और आएगा दैट इज़ 68, एक और जो आएगा दैट इज़ 2, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर फिर जब भी जहाँ भी आप करोगे तो वैसे ही इसको काउंट करके जाना है जब तक आपको 30 अपना सैम्पल नंबर ना मिले, ठीक है। अगर आपको अब बीच में कोई ऐसा मैं कहूँगी कि हमें 3 डिजिट नंबर्स अगर हैं, मैं एक और एग्ज़ाम्पल आपको दूँगी कि हमें पॉपुलेशन है 589, ठीक है। तो पॉपुलेशन साइज़ हमें 589 है, हमें 50 स्टूडेंट्स एज अ सैम्पल लेने हैं। तो 589 इट्स 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो हमें 3 कॉलम्स ना चूज़ करने हैं। मैं कॉलम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में चूज़ करूँगी। जो पहला नंबर आएगा दैट इज़ 342, जिसका होगा वो मेरा सैम्पल में होगा। दूसरा जो नंबर आ रहा है दैट इज़ 376, है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो ये 376 जो है ये मेरे सैम्पल से, ये मेरी पॉपुलेशन से बाहर है, ठीक है, क्योंकि मेरी पॉपुलेशन है 589 ही। सो इसको मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं फिर नेक्स्ट नंबर पे जाऊँगी 570 पे, ठीक। ये मेरे सैम्पल में आएगा। इसी तरीके से एक और नंबर वहाँ पे आता है 869, तो ये मेरे सैम्पल में नहीं आता है। तो मैं ऐसे ही चूज़ करते जाऊँगी सैम्पल को जब तक मेरा सैम्पल 50 ना आ जाए। आई होप कि आप लोगों को ये रैंडम नंबर टेबल ठीक से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ द कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम टेबल, ठीक है। कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नंबर ऑफ टेबल जो है, इसमें मतलब ये एक ऐसा तरीका है कि हम रैंडम नंबर्स जनरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाई गई है कि ये रैंडम नंबर्स हमने यहाँ पे हैं, दीज आर बीइंग जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करके ये रैंडमली नंबर्स को चूज़ कर सकते हैं। आप गूगल सर्च करके मतलब देख सकते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस ना कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नंबर टेबल के लिए, ठीक है। तो आपको बहुत सारी टेबल्स वहाँ पे मतलब बहुत सारी साइट्स वहाँ पे दिखेंगे जो हम यूज़ करते हैं। अगर आप देखोगे कि जब भी आपको रैंडम नंबर जनरेटर या रैंडम नंबर टेबल यूज़ करना होगा तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब आपको किस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। फर्स्ट कि हाउ मेनी रैंडम नंबर्स यू हैव टू चूज़, ठीक है, आपको कितने रैंडम नंबर्स चूज़ करने हैं। सेकंड जो आपको चाहिए कि आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ठीक, और आपका थर्ड मिनिमम वैल्यू कितना है, ठीक है। तो और उसके बाद मतलब आप कितनी बार ना अलाउ कर रहे हो डुप्लीकेट एंट्रीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इन चीज़ों को मतलब देखना है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि मतलब एक क्लिक से आपको कैलकुलेट हो सकता है कि जो ये रैंडम नंबर जनरेटर होगा। तो आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे कहूँगी। हमें एक सॉफ्टवेयर है स्टार टर्क्स रैंडम नंबर जनरेटर, एक सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। दूसरी सॉफ्टवेयर है ये ग्राफ पैड है, एक सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट द रैंडम नंबर्स थ्रू कंप्यूटर, ठीक है। सो ये था सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो है ये सैम्पलिंग हम तब यूज़ करते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन, गिवन पॉपुलेशन जो होगी दैट इज़ लॉजिकली हमें कहेंगे दैट शुड बी होमोजीनियस, ठीक है, वो होमोजीनियस होनी चाहिए, ठीक। तो जो भी हम इसको हम कहेंगे कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग यूनिट जो है दैट शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। उसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए ओवर द पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन पे जो भी आप सैम्पल मतलब ले रहे हो, ठीक।
तो ये किस के अंडर आता है? इट कम्स अंडर द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, है ना। तो हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड ही पढ़ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में हमें क्या है कि जो भी हम सैंपल ले रहे हैं, जो भी नंबर्स हमारे सैंपल में आ रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि मतलब हर एक मेंबर को चांस होता है कि वो सैंपल में आ सकता है, और हम रैंडमली सैंपल को मतलब चूज़ कर रहे हैं, ठीक। स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉइंट हम स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ करते हैं, उसके बाद हम वहीं से आगे बढ़ते हैं तो ड्रॉ द सैंपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर दिस पॉपुलेशन। अब मसला है कि यहाँ पे हमें फिक्स्ड इंटरवल होता है इसमें, कि हम एक फिक्स्ड इंटरवल चूज़ करते हैं टू ड्रॉ द सैंपल। जो ये इंटरवल है, इस इंटरवल को, फिक्स्ड इंटरवल को हम कहते हैं सैम्पलिंग इंटरवल, ठीक है। मतलब मैं आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दूंगी कि आप लोगों को आईबीएम स्टूडेंट्स पे काम करना है, तो आप क्लास के बाहर बैठते हो और आप बोलते हो जो यहाँ पे इस क्लास में एंटर होगा, जो भी 10वां स्टूडेंट होगा, तो मैं उसको अपने सैंपल में लूँगी, या जो भी 15वां स्टूडेंट एंटर होगा तो उसको मैं अपने सैंपल में लूँगी, ठीक है। तो उसको हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहते हैं। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दूंगी कि you want to compare the mean score of the technostress of male and female students, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको आईबीएम स्टूडेंट्स या जो भी स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पॉपुलेशन जो है वो स्टूडेंट्स की है वो 1000 है, ठीक है। आपको 1000 पॉपुलेशन है, यानी कि पॉपुलेशन नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक। तो मतलब आपको सैंपल ड्रा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू वांट टू चूज़ 100 फ्रॉम दिस 1000, ठीक है। तो सैंपल को हम डिनोट करते हैं ये स्मॉल एन से, ठीक। तो आपको सिस्टमैटिक मतलब सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करनी है। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक हम कैसे यूज़ करेंगे कि हमें देखना है कि जो हमारा इंटरवल रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। तो इंटरवल हमें देखना है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम कितनेवें मेंबर के बाद कौन सा मेंबर उठा सकते हैं। तो उसको इसमें हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि वी टेक एवरी केथ मेंबर। केथ, ये हमें इंटरवल ढूंढना है, के इज़ द इंटरवल, ठीक है। आफ्टर एवरी केथ मतलब सब्जेक्ट हम उसको अपने सैंपल में लेते हैं। तो के जो है वो हम कैसे ढूंढते हैं, इट्स जितनी आपकी पॉपुलेशन है और डिवाइडेड बाय जितना आपका सैंपल है। लेट अस सपोज कि यहाँ पे 1000 है पॉपुलेशन और आपका सैंपल हमें 100 लेना है। सो वहाँ पे आपका के जो निकल रहा है दैट कम्स आउट टू बी 10, यानी कि आपके सैंपल में एवरी 10th मेंबर जो भी आपके पॉपुलेशन में होगा वो आप इंक्लूड करोगे किस में, अपने सैंपल में। सो आपको क्या करना है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पहला स्टूडेंट जो आप चूज़ करोगे दैट विल बी एट द 10th पोजीशन, ठीक। उसके बाद फिर से 10 गिनने हैं और 10वें पोजीशन पे जो होगा वो 10th नंबर, एवरी 10th स्टूडेंट you will be calculating in a population like 10 serial 10 serial 20 20th student 30th student, इसी तरीके से 40th student एंड सो ऑन। जितना आपका सैंपल लेना होगा उतने आपको मतलब 100 लेने हैं, तो आपको वैसे ही उसको चूज़ करना है। सो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो है इसमें हम ये मतलब इंश्योर करते हैं कि मतलब हमें यहाँ पे बायसनेस नहीं है, क्योंकि केथ हमें निकलता है इस फार्मूला से, ठीक है। सो हर एक मेंबर फ्रॉम 1 to 1000 जो भी हमारे मेंबर्स होंगे दे हैव इक्वल चांस टू गेट बीइंग ड्रॉन एज अ सैम्पल फॉर द दिस रिसर्च, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे कि जो हमारा इंटरवल है ये
हम चूज़ करते हैं एंड इट्स अ कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट तब तक रहेगा मतलब जब तक आपको पूरा सैम्पल ड्रॉ आउट नहीं होगा, ठीक। मीन्स कि हम रैंडमली इंटरवल को ड्रॉ देखते हैं, हम कोई भी बायसनेस नहीं करते हैं तो ना गेट द टू हैव द इंटरवल, ठीक। केथ को हम रैंडमली चूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है वन मोर टेक्निक, दैट इज़ द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक ये मैंने पहले भी आपको कहा कि ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी पॉपुलेशन जो होगी दैट विल बी हेटेरोजीनियस इन नेचर, ठीक है। तो हमारी पॉपुलेशन जो होगी वो हेटेरोजीनियस होगी एंड दैट विल नॉट बी वाइडली स्प्रेड, वो ज़्यादा फैली हुई नहीं होगी, तभी हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। तो अगर आप देखोगे कि जो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि हमें जैसे हमने पिछले में टाइटल दिया कि हमें IBM स्टूडेंट्स पे काम करना है, IBM स्टूडेंट्स ऑफ UK, ठीक है। तो इन IBM स्टूडेंट्स में मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे, ठीक है। इन IBM स्टूडेंट्स में कोई रूरल एरिया से भी होगा, कोई अर्बन एरिया से भी होगा, ठीक। तो हमारा हम ये कह सकते हैं हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें मेल और फीमेल को कंपेयर करना है या हमें रूरल अर्बन को कंपेयर करना है, ठीक। बट हमें क्या देखना है कि हम जब भी मतलब सैम्पल ड्रा करेंगे तो उसमें मेल भी होने चाहिए और फीमेल भी होने चाहिए, उसमें रूरल भी होने चाहिए और अर्बन भी होने चाहिए, ठीक है। लेट अस सपोज फिर से हम ये देखेंगे कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 100 स्टूडेंट्स हैं और इन 100 में से हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं, इन 1000 में से हमें 100 स्टूडेंट्स सैम्पल ड्रा करने हैं और हमें पहले ही देखना है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम पहले ही स्ट्रेटास बनाते हैं, लाइक मतलब इन 100,000 स्टूडेंट्स में कितने रूरल हैं, कितने अर्बन हैं, इन 1000 स्टूडेंट्स में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। लेट अस सपोज़ कि यहाँ पे जो मेल हैं वो 400 हैं और फीमेल जो है वो 600 हैं। लेट अस सपोज़ कि यहाँ पे जो रूरल पॉपुलेशन है वो 700 है और जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 300 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें तो 100 लेना है ना, तो 100 हमें ऐसे लेना है कि वो इस 1000 का हम कहेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी कि हम प्रपोर्शनेटली लेते हैं। हम देखते हैं कि अर्बन में पॉपुलेशन कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अर्बन पॉपुलेशन की परसेंटेज हम लेते हैं तो उसके बेसिस पे हम फिर सैम्पल में भी अर्बन, ये 30% है अर्बन, तो सैम्पल में हमें कितने लेने हैं, हमें 30% किसका लेना है, 30% ऑफ 100 लेना है, ठीक है। तो सैम्पल में हमें अर्बन कितने आएंगे, दैट विल बी 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें फ़ीमेल लेने हैं, फ़ीमेल हमें पॉपुलेशन में कितनी है, फ़ीमेल हमें 600 है पॉपुलेशन में, ठीक। तो फ़ीमेल की परसेंटेज कितनी है पॉपुलेशन, वो 60% है। तो यानी कि अगर 60% यहाँ पे है तो हमें वहाँ पे भी यानी कि हमें सैम्पल 100 में भी हमें 60% ही लेनी है, यानी कि फ़ीमेल हमें 60 ड्रा करनी है, मेल हमें 40 ड्रा करनी है, या उसी तरीके से रूलर हमें 70 ड्रा करनी है, ठीक है। तो ये 100 का सैम्पल आ जाएगा, है ना, समझ आया। सो जो ऐसे हम सैम्पलिंग करते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड प्रपोर्शनेट, क्योंकि हम एक प्रपोर्शन में ले रहे हैं ना, हर कोई प्रपोर्शनेट रैंडमली हम ले रहे हैं, तो ठीक है, इसीलिए हम इसको कहेंगे स्ट्रैटिफाइड प्रपोर्शनेट रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो जब भी आप मतलब हम जब भी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग प्रोसीजर यूज़ करते हैं, हम हर एक स्ट्रेटा से 4 स्ट्रेटा
मेल फीमेल रूरल अर्बन हर एक स्ट्रेटा से हम सब्जेक्ट्स को इक्वली ड्रा करते हैं, और प्रोपोर्शनेटली जब हम ड्रा करेंगे तो हम परसेंटेज के बेसिस पे तो हम उसको कहते हैं कि इट्स प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग। ठीक है, समझ आया? And then we have another type of sampling, that's the cluster sampling। तो cluster sampling में आपकी population heterogeneous है, ठीक है, but that's widely spread population, वो widely spread होगी, ठीक है, समझ आया? तो मतलब उसमें हमें क्लस्टर्स, वेल डिफाइंड क्लस्टर्स होंगे, वहाँ पे वेल डिफाइंड ग्रुप्स होंगे बना के, ठीक। जैसे आपके हमारे स्टेट जे एंड के में हमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे? आप में से कोई बोल सकता है कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे? जे.एंड.के में हमें 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जे.एंड.के में हम ये कहेंगे 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जे.एंड.के में हमें दूसरा जो हम डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं उनको हम तहसील्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 20 डिस्ट्रिक्ट्स और 207 तहसील्स हैं, है ना? तो यानी कि हमें वेल डिफाइंड यहाँ पे ग्रुप्स बनाए गए हैं, ठीक। तो अगर आप देखोगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को काम करना है, आप लोगों को देखना है, यू हैव टू फाइंड आउट या यू हैव टू स्टडी अबाउट द प्रॉब्लम्स, you have to study about the problems in managing midday meal by principals। प्रिंसिपल्स कहाँ के? ऑफ मिडिल स्कूल्स ऑफ जे.एंड.के, ठीक है। तो जे.एंड.के में हमारे पास 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 207 तहसील्स हैं, यानी कि हम हर एक प्रिंसिपल को पे रिसर्च नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें एक कुछ मतलब पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स लेने हैं या हमें पर्टिकुलर सैम्पल ड्रा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सैम्पल लेना है, तो हम पूरे जे.एंड.के को डिवाइड किए हैं ग्रुप्स में, दैट्स 20 डिस्ट्रिक्ट्स, और इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स में से हमने रैंडमली सिलेक्ट किए हैं, लेट अस सपोज 5 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हमने रैंडमली सिलेक्ट किए हैं, और मतलब जो वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट से हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मिडिल स्कूल्स हैं, लाइक एक्स नंबर ऑफ मिडिल स्कूल्स हैं, तो वो हमने इंक्लूड किए हैं अपने सैम्पल में। वहाँ पे जितने प्रिंसिपल्स हैं वो हमने सैम्पल में लिए हैं, ठीक है। यानी कि ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ द मिडिल स्कूल्स ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट्स वी हैव इंक्लूडेड इन द सैम्पल। दिस इज़ नोन एज क्लस्टर सैम्पलिंग। ये मतलब पहला स्टेज है क्लस्टर सैम्पलिंग का। अब अगर हमारा जो सैम्पल है मतलब उसका लार्ज साइज़ है, तो हम फर्दर उसको ड्रा आउट कर सकते हैं कि हम इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए लेट अस सपोज कि 50 ये स्कूल्स लेंगे, तो उन स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स होंगे वो हमारा सैम्पल रहेगा। दिस इज़ द सेकंड स्टेज हम ये कहेंगे कि ये क्लस्टर सैम्पलिंग का, ठीक है। तो क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में मतलब हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक है, उसमें हम रैंडमली ड्रा करते हैं फ्रॉम द स्ट्रैटा, हर एक स्ट्रैटा से हम उसमें ड्रा करते हैं, ठीक है। बट जो ये क्लस्टर सैम्पलिंग है, इसमें हम इस क्लस्टर सैम्पलिंग में हम जब सिलेक्ट करते हैं क्लस्टर्स, या तो हम एक ही सिंगल स्टेज में करेंगे, या फिर हम 2 स्टेजेस में इसको ये सैम्पल ढूंढेंगे, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ठीक। तो नेक्स्ट इज़ we are having the one more sampling technique, that's the multi-stage sampling technique। multi-stage sampling technique ये भी हम कब यूज़ करेंगे? जब आपकी पॉपुलेशन heterogeneous हो एंड दैट इज़ वाइडली स्प्रेड। तो ये दो टेक्निक्स जो हैं, यहाँ पे हमें वाइड स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए, चाहे क्लस्टर है चाहे मल्टी स्टेज है। सो जब हमारी पॉपुलेशन वाइडली स्प्रेड है, तो
इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लिस्ट एक बनाए पूरी पॉपुलेशन का, तो हम उसको रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए कर सकते थे। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक है, इट्स समवट कम्प्लेक्स दैन द जो हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा क्लस्टर सैम्पलिंग से। तो क्लस्टर सैम्पलिंग जो है हम ये कहेंगे कि इट्स अ टाइप ऑफ अ सैम्पलिंग जिसमें हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को इनटू ग्रुप्स या क्लस्टर्स, ठीक है। तो फिर हम एक या एक से ज़्यादा क्लस्टर्स को ड्रा आउट करते हैं रैंडमली, और जो भी उस क्लस्टर में हो है दैट इज़ बीइंग सैम्पल, ठीक है। हम एक या दो क्लस्टर्स को लेते हैं, तो उन्हीं एक या दो क्लस्टर्स में जो हमें ये पॉपुलेशन मिलती है उसकी, तो हम उसको अपने सैम्पल में लेते हैं। तो cluster sampling sometimes we can see that it involves selecting the sample in first stage or in two stages, ठीक। अब दो से ज़्यादा स्टेजेस जहाँ पे होंगे वहाँ पे हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बोलते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम यही प्रिंसिपल्स का लेते हैं, जो हमें प्रिंसिपल्स का देखना है कि JNK के प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो JNK में हमें 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट्स में 7 तहसील्स हैं। तो पहले क्या करते हैं, इन फर्स्ट स्टेज वी ड्रॉ द 5 डिस्ट्रिक्ट्स रैंडमली, ठीक है। तो इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हमें बहुत सारे मिडिल स्कूल्स मिलेंगे, तो वी ड्रॉ 50 स्कूल्स रैंडमली, ठीक है। तो जो 50 स्कूल्स होंगे, 50 स्कूल्स के 50 प्रिंसिपल्स हमें सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद उन 50 स्कूल्स में से या उन 50 प्रिंसिपल्स में से वी ड्रॉ लाइक वी कैन से कि 10 प्रिंसिपल्स रैंडम, ठीक है। समझ आया? सो दिस इज़ 3 स्टेज सैम्पलिंग, यानी कि हम पहले क्या करते हैं, हम पहले डिस्ट्रिक्ट में से 5 डिस्ट्रिक्ट्स को रैंडमली चूज़ किया। उसके बाद उसमें कितने मिडिल स्कूल्स थे, उनमें से 50 मिडिल स्कूल्स को रैंडमली सिलेक्ट किया, एंड उसके बाद उन 50 स्कूल्स में से 10 प्रिंसिपल्स को रैंडमली सिलेक्ट किया। दिस इज़ द 3 स्टेज सैम्पलिंग, और इसको हम कहते हैं कि ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है, ठीक है। तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के ज़रिए हम लोगों ने प्रिंसिपल्स को चूज़ किया। या आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ इन 50 में से हम लाइक 5 फीमेल प्रिंसिपल्स को लेंगे, इन 10 में से हम 5 फीमेल प्रिंसिपल्स को लेंगे, 5 मेल प्रिंसिपल्स को लेंगे। या ऐसे इन 10 में से हम 5 रूरल को लेंगे, 5 अर्बन को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक स्टेज के बाद दूसरे स्टेज के बाद तीसरे स्टेज, मतलब हर एक स्टेज में जो 4-5 स्टेजेस हमारे रहते हैं, तो उनमें से हम ड्रॉ करते हैं सैम्पल को, उसको हम कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, जो हमने आज देखा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। आई नो कि ये हरी में लेक्चर बन रहा है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू कमेंट दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. Thank you. Now there will be upcoming no either there will be this video, or and there will be a short what we have to remember while selecting the sample. Do like this video, and do share this video with your friends. Do subscribe to our channel if you are new to our channel. Thank you very much for joining.